خبری آپ سنائے ربا ٹوٹی ہڈیاں تے تو ہون گیا خوش صدا ٹوٹی ہڈیاں تے تو ہون گیا خوش صدا وے خدا تو دل دی بخش خدا تو میری سب گناہ معاف کرے بخش خدا تو میری سب گناہ معاف کرے دے تو اپنی پاک روح میں نو پاک صاف کر دے تو اپنی پاک روح میں نو پاک صاف کر دیکھ خدا تو میں دل دی ایک نہ اپنے آگو رونا میں تو لے لوں ایک نہ اپنے آگو رونا میں تو لے تو مکتی دی بخشوشی نال ڈاس نہ دے تو مکتی دی بخشوشی رونال ڈاس نہ دے تو بے خدا تو دل دی تدو میرا تیرا بریانو سکھلاما تدورا میں تیرا بریانو سکھلاما توبہ تدو کرنگے جدو میں سناوا توبہ تدو کرنگے جدو میں سناوا بے خدا تو دل دی خونو میں نو پاک کر اے خدا ہمارے خونوں میں نو پاک کر اے خدا ہمارے اونچی دیتی گاوا تیرے حکم نیارے اونچی دیتی گاوا تیرے حکم نیارے بے خدا تو دل دی چاندہ ہاں سچائی میرے دل وچ ایرا بنو بخش دنائی بے خدا تو دل دی بنو بخش دنائی بے خدا تو دل دی ہاللویا خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے زبور گائیں گے ایک دعا کر لیں پہلے اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں جھکے اس سے قوت کو مانگیں روحانی قوت کو جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی لیکن بہت بڑی قوت ہے اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو خداوندوں کا خداوند ہے اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں بے شک خداوند ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن خداوند تیرا یہ وعدہ ہے کہ جہاں 2-3 میرے نام پہ اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا اے باپ اس وقت ہمارا یہ یقین اور مکمل ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے اور تیری یہاں پر تخت لگا ہوا ہے اور تو ہماری حمد و ستائش کو سنتا ہے اے باپ آج جو میسج ہے جو تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہمیں دیا ہے اس کو ابھی سے تیری بلیسنگ میں دیتا ہوں
हमारे ज़हनों को खोलना, ताकि उस मैसेज को, उस पैगाम को जो तूने आज अपने बंदे के वसीले से दिया है, हमें हमारे लिए बाइस बरकत है। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू अपने वादों का सच्चा खुदा है, तू हमेशा बरकत देता है। हम इस तेरे घर के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ बाप अपना हाथ बढ़ाए रखना, और जब तक हम तेरी हमदोस्ताइश करते रहें, तेरा तख्त यहाँ पर लगा रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल में। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ यीशु मसीह के अपनी बाबरकत और पाक नाम में, आमीन। मेरे अजीज इलाज पूरा गाएंगे या गीत जो भी खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ेंगे। और ज़बूर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कम बिछाएगा ते ओ आराम पांदा है, खुदा दे कम बिछाएगा ते ओ आराम पांदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं ओ सब आकांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं ओ सब आकांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरायो तेरा कांगा। किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरायो तेरा कांगा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। बाबा ते मरी बारी तो, बाबा ते मरी बारी तो, तदो तेनू बचावेगा। बाबा ते मरी बारी तो, तदो तेनू बचावेगा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, ते अपने काम देता लुकावे
تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری تیرے ہتھیار ہوونگے خداوند دی وفاداری ڈراوے گا نہ دن داتی ڈراوے گا نہ دن داتی نہ تینوں رات اندھیاری ڈراوے گا نہ دن داتی نہ تینوں رات اندھیاری خدا دے پردے ہیٹا جو کوئی انسان رہندا ہے نہ کچھ نقصان دے گی اندھیرے دی وبا تینوں نہ کچھ نقصان دے گی اندھیرے دی وبا تینوں تپالی جیڑی چٹ کر دی تپالی جیڑی چٹ کر دی ملکانوں دوپہرانوں تپالی جیڑی چٹ کر دی ہے ملکانوں دوپہرانوں خدا دے پردے ہیٹا جو کوئی انسان رہندا ہے تپالی تیرے سجے ہتھ ہزارانوں لے جاوے گی تپالی تیرے سجے ہتھ ہزارانوں لے جاوے گی کدی بھی کول تیرے کدی بھی کول تیرے تپالی پھر نہ آوے گی خدا بھی کول تیرے کدی پھر نہ آوے گی خدا دے پردے ہیٹا جو کوئی انسان رہندا ہے تو اپنی آنکھیاں تو ہاتھ لے کے گا شریراں دا تو اپنی آنکھیاں تو ہاتھ لے کے گا شریراں دا خدا بند بدلا دیندا خدا بند بدلا دیندا انہاں دی شرارت دا خدا بند بدلا دیندا انہاں دی شرارت دا خدا دے پردے ہیٹا جو کوئی انسان رہندا ہے خدا دے کم دی چاہیٹا تے او عذاب پاتا ہے ہلیلویا خداوند کا شکر ہو اس کی حمد و ستائش و پرستش کے لیے پٹی لگی ہے جس پٹی لگی ہو پکے اب ہم خداوند کے حضور جھک کر ایک دعا کریں گے اور میری درخواست ہے کہ بھائی سیمول کے ساتھ مل کر ہم خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے
प्रेज हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। यूहन्ना आरिफ मुकाशवा के अंदर इस तरह यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि बर्रा ज़बा किया हुआ बर्रा ही हमदो सना सताइश बुजुर्गी के लायक है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम बर्रा यीशु मसीह जो है उसकी हमदो सना करते और इस कदर हम उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि वो इबादत और प्रशंसा के लायक है। अपने सिर को झुकाएंगे, आंखें बंद करें, दुआ करेंगे आज के इबादत के लिए, कलाम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए कि खुदावंद आज इस मिनिस्ट्री को इस कदर बरकत दे और इस कदर चेयरमैन साहब को इस काम को सर अंजाम देने के लिए हिम्मत अदा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज के प्यारे खुदा सुहाना मौसम के लिए, दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों के अंदर अच्छा दिन बख्शा है और अच्छे इस कदर पहले खुदा मौसम को तूने दिया है और खुदा तेरा शुक्रगुजार है। हम तेरे हुजूर आए हैं, हमने तेरी परस्तिश किया और यीशु नासरी क्योंकि तू ही ज़बा किया हुआ बर्रा ही इस कदर हम दो सना और सताइश के लायक है। और खुदा आज की सताइश के वसीले से, आज की इबादत के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तेरे हाथ वाले तेरे पाक फरिश्ते हिफाजत करें। आज जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही है तेरे हाथ वाले तेरे पाक फरिश्ते उनकी हिफाजत करें। अब तेरा पाक रूह पहले खुदा का पाक रूह जो है वो इस कदर हमें पहले खुदा लीड करता है, हमारे ध्यान भाई करता है। अब पहले खुदा इस कदर हमें दाग की बातें बताता है। आज का कलाम जो हो तेरे खादम के लिए अब पहले खुदा मिन्नत करता हूँ तेरा पाक रूह कसरत से मसा जो है ठहर जाए और खुदा इस कदर दाग की बातें जो तेरे कलाम मुकद्दस की हैं, जो देश का हमारे निजात के लिए है, हमारे पहले खुदा इस कदर शिफा के लिए है और पहले खुदा पर जाकर और हम सब इस कदर पहले खुदा आज के कलाम के सिरे से अब इसके निजात पाएँ और इस कदर शिफा पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि तेरे पास कसरत की ज़िंदगी है। यीशु मसीह नाम से तेरा शुक्र करता हूँ, तूने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि सब लोग कसरत की ज़िंदगी पाएँ और पहले खुदा तेरे पास कसरत की ज़िंदगी है। और खुदा सब दुआ करता हूँ इस मैंने पहले खुदा शेयरिंग लीविंग मिनिस्ट्री के लिए पहले खुदा जो इस कदर तूने जो अपने बंदा को इस कदर पहले खुदा रोया दिया, इस रोया के अंदर पहले खुदा अपने बंदा की बड़ी मदद कर और जरूरियात अपने लायक सन से पूरा कर और खुदा अपने बंदा को इस कदर इस जिम्मेदारी को सर अंजाम देने के लिए इस कदर पहले खुदा इस्लाम की अदा करना। और खुदा इस कलीसिया में दुआ करता हूँ और पहले खुदा जो इस कदर पहले खुदा परेशान है और पहले खुदा इबादत के लिए नहीं आ पा सकते क्योंकि चर्च बंद है। और खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ वो जहाँ जिधर भी जाए खुदा तेरा हाथ उनको संभाले, तेरे पाक फरिश्ते उनकी हिफाजत करें और पहले खुदा जब भी पहले खुदा चर्च खुले और सलामती के साथ तेरे घर में आए और तेरे हम तो सुना कर सकें। पहले खुदा बाकी माना वक्त पर तेरी बरकत मांगता हूँ, तेरा हाथ मांगता हूँ, तेरे बंदा को तेरे खून में छिपा देता हूँ, तेरी बहती धारा के निचलाता हूँ और मैं तेरे पाक उस पर कर देता हूँ। तेरे पाक का मस्सा उसकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे और हम सब बच जाए, हम निजात पाएँ। तेरी बादशाह जो आसमान पर तूने हम सब के लिए तैयार किया और सब जो है तेरी बादशाह को तैयार हूँ। तू खुदा जल्द आने वाला है, जब तो आए तो हम तो और का इस्तेमाल कर सके। बड़ी बरकत है ये मिन्नत करता हूँ, लीड करने वाला जवान के दुआ करता हूँ तेरे खुदा उसको हिम्मत अदा कर ज़हन बख्श दे और इस कदर तेरा शुक्र करता हूँ जो इस कदर लीड करता है और खुदा इस कदर लीड करने में मदद करना और तेरे खुदा तेरे से सताइश करने में मदद करना, अपने बंदा की बड़ी हिफाजत करना। मसीह यीशु के कदूस और मीठे नाम से जाओ, आमीन। खुदा का शुक्र हो। आज हम अपने खुदा के अजीज खादम से खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे। मैं दावत दूँगा जनाब पास्टर अख्तर काज़मी साहब को कि वो आएँ और हमारे लिए खुदा के जिंदा बख्श कलाम को पेश करें।
हालेलुया। हालेलुया। वो कि हम थोड़े हैं लेकिन खुदा का रूह हमारे साथ है और हमारा ईमान होना चाहिए। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए। हम दो हवाला जात मुख्तलिफ बुक्स में से देखते हैं। पहला हवाला हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील, उसका 21वां बाब, उसकी 11वीं आयत है। और दूसरा हम देखेंगे मुकाशफा की किताब 6वां बाब, उसकी 8वीं आयत। लूका 21 बाब और उसकी 11वीं आयत। निकालिए 21वां बाब उसकी 11वीं आयत में खुदावंद यूं फरमाते हैं। हमें आज के दौर के मुताबिक हवाला जात को देखना है कि जब हम इंसान परेशानी में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। दर्द कलाम में यूं मरकूम है, और बड़े बड़े बोलचाल आएंगे और जा बजा काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। हम देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका बाब 6 है और 8वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलम अरवा और उसके पीछे पीछे है। और उनको जो चौथाई ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाकत करें। तब आपके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। तब बोले आमीन। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो मुकाशफा की किताब में हमने 2-3 लफ्ज़ पढ़े, लेकिन हम एक लफ्ज़ है जिसको वबा के तौर पर हम देखेंगे। जब हम यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो इसका मतलब है मौत, यानी कि मौत का आना। इन वबाओं के ज़रिए, इन कामों के ज़रिए हम तक होता है। जब हम इस अज़ाब, जिसको अज़ाब इलाही भी लोग कहते हैं, कि ये खुदावंद की तरफ से है, क्योंकि हम लोग जो इंसान हैं पूरी दुनिया के, हम लोग खुदावंद के कामों से हट गए हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से ये मुसीबत हमारे लिए आई है। जब हम देखते हैं इसको, इस अज़ाब को जब हम देखते हैं तो आजकल कोरोना वायरस के नाम से इसको कोविड-19 यानी कि 19 नंबर का लफ्ज़ दिया गया है। लेकिन जब हम इसकी और स्टडी करते हैं तो नए अहदनामा में हम मुख्तलिफ बुक्स का मुतालिया जब करते हैं तो उनमें भी 19 दफ़ा इस वबा यानी कि जो वबाएँ हैं 19 दफ़ा उनका जिक्र आया हुआ है। लेकिन जब हम देखिए इसको यूनानी में जब इसको देखते हैं तो इसका नाम है बैसानोस, और एक और थोड़ा सा उसको इसकी तशरीह के साथ में बैसानोजिम्स के नाम से इसके मानी है इस वबा के। और इसका मानी क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना, किसी का टेस्ट लेना, या किसी को ट्रायल में रखना, या टॉर्चर करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको वबा को यानी कि इसके साथ जोड़ा गया है, यानी कि अजाब जिसको हम कहते हैं। अजाब जो है वो इस तरह के, जब पुराने अहदनामे में देखते हैं तो लोगों ने खुदा के हुजूर बहुत से ऐसे गुनाह किए जिसकी वजह से उनको बहुत से अजाब में से गुजरना पड़ा। जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 29वें आयत में जब हम देखते हैं कि इस अजाब को, ये कितना डरावना लफ्ज़ है। मौत जो है एक बड़ा डरावना लफ्ज़ है। हम किसी जानदार को ऐसे कह दें कि एक मौत का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करें तो वो डर जाएगा, वो डरेगा।
लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो कि बदलुए हैं, बैड स्पिरिट्स जो हैं, जब उनको हुक्म दिया गया तो उन्होंने आगे से यीशु को क्या जवाब दिया। मत्ती सुसमाचार का 8वां बाब उसकी 29वीं आयत में यूं मरकूम है, और देखो उन्होंने चलाकर कहा, आए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले। अजाब का जब हम लफ्ज पढ़ते हैं तो ये एक अजियत देने वाली चीज, यहाँ एक बदलू है जो खुद लोगों को अजियत देती है, लेकिन यहाँ जब उसको हुक्म दिया गया कि तू इस आदमी से निकल जा, तो उसने कहा कि वक्त से पहले मैं कैसे चली जाऊं, क्योंकि उसका एक वक्त था कि वो उस वक्त में आकर उस इंसान को तकलीफ देती थी, उस खानदान को अजाब में डालती थी। लेकिन जब उन्होंने यीशु का नाम लिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आए खुदा के बेटे, उनको ये भी पता है कि ये कौन है, कौन सी इसके पास अथॉरिटी है, ये हमें हुक्म दे रहा है और कह रहे कि वक्त से पहले, यानी कि उनका वक्त ये है कि उन्होंने अपना काम करके जाना था, लेकिन वक्त से पहले उनको खुदावंद हुक्म देता है। वो भी कहते हैं कि हमें अजाब में ना डाल। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफ ज़्यादा हैं। मैं रात को भी एक जगह पर खुदा का कलाम शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा लोग खुदा से नहीं डरते, कोरोना वायरस से डरते हैं, इसके खौफ से डरते हैं। जब इसका खौफ उनके दिलों में आता है, जब वो टीवी पर, मैगजीन में, अखबारों में पढ़ते हैं, अमवात का पढ़ते हैं, मुसीबतों का पढ़ते हैं, तो फिर वो खुदावंद से कहते हैं कि हमें खुदावंद माफ करे। परसों की बात है, हमारा एक दोस्त कह रहा था आज लोगों को याद आ गया कि हमने कोठों के ऊपर चढ़कर अजान दे दी। पहले कहाँ थे? जब मुसीबत आई है तो खुदा भी याद आ गया। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि तू हर वक्त मेरी शुक्रगुजारी कर, खास सुख में है या दुख में। लेकिन जब हम खौफ की बात करते हैं, जब हमें इब्लीस का खौफ होता है या किसी वबा का खौफ होता है, तो उससे हम खुदावंद के आगे भी नहीं जाते, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो मोहब्बत नहीं होती, वो प्यार नहीं होता। आज जब हम देखते हैं मुसीबतों को, तो हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन, हर इंसान एक दूसरे को अज़ाएं, मुसीबतें, परेशानियां देने के लिए तुला हुआ। कभी भी वो कोई भी काम करता है तो उसमें वो अपना फायदा सोचता है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। 2 तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि हमें किस तरह का होना चाहिए। क्या आज हम उस तरह काम करते हैं? क्या हमें जो खुदा ने अपना रूह दिया है वो किस लिए दिया है? शरारत के लिए, गुनाह के लिए या दहशत के लिए? आइए खुदा के कलाम पर गौर करें और इस आयत को जरा सुनिए। 2 तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। हालेलुया। खुदा ने हमें कौन सी रूह दी है? तरबियत की, मोहब्बत की और प्यार की। यानी कि कुदरत ने हमें ये मेहरबानी की है हम पर, हमें दहशत की रूह नहीं दी कि हम लोगों को डराएं, लोगों के ऊपर अपना खौफ तारी करें। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं वो हमें क्या सिखाता है। जब हम लूका रसूल की इंजील का मुताला करते हैं तो हम जब उसका बाब 16 देखते हैं तो उसमें 23वीं आयत से लेकर 25 आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ एक स्टोरी है लाजर की और अमीर आदमी। जब खुदावंद की मर्जी से वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इंतकाल कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ एक दूसरे को देखते हैं। जब देखते हैं तो वो अमीर आदमी जो इस दुनिया में रहकर ऐश इशरत करता था, नौकर चाकर थे, सोने के लिए मखमल का बेड, हो सकता है इससे भी कोई महंगा हो, एक
खादम आ रहा है, एक जा रहा है, पैसे की रवानी है, हर तरह की सहूलत है, लेकिन वहाँ जब वो जाता है तो उसका जो काम उससे उलट हो जाता है। वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसके लिए मौत है, अजाब है, और ऐसा अजाब है कि जब हम देखते हैं कि वो देख रहा है कि लाजर जिस पर मैंने इतना जुल्म किया, जिसके साथ मैंने इतनी बदसलूकी की, आज वो कहाँ है? वो बाप इब्राहिम की गोद में बैठा है। लेकिन वहाँ वो एक रिक्वेस्ट करता है खुदावंद के आगे कि आए खुदावंद, तू लाजर को कह कि एक बूंद पानी की मेरे मुंह में डाले, क्योंकि मैं प्यास से मरता हूँ। जब हम ये बात देखते हैं तो 16वां बाब है लूका रसूल की इंजील, और उसकी जब हम 23 से 25 आयत तो पूरी नहीं देखेंगे, लेकिन हम 28वीं जो आयत है उस पर गौर करेंगे। 16वां बाब है उसकी 28वीं जो आयत है उस पर हम गौर करेंगे। यहाँ वो क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। उसको कहा कि लाजर को भेज दे कि मेरे जो बाकी भाई हैं वो उनके आगे खुदा की बातें बताए कि वो इन हुक्मों पर अमल करें। लिखा है 5 भाई, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए, यानी कि वो अजाब में है, परेशानी में है, लेकिन वहां दरख्वास्त कर रहा है कि खुदा के बंदों को भेज, ताकि जो मेरे बाकी भाई हैं वो इस अज़ियत वाली, अजाब वाली जिंदगी में ना पड़े, बल्कि खुदावंद की बातों को सुनकर उस हमेशा की जिंदगी में आ जाए, जिस तरह लाजर बाप इब्राहिम की गोद में बैठा है। जब हम इस अजाब की बात करते हैं तो जब खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। जब हम गुनाह करें, बुरे काम करें, हर एक को तंग करें, मोहब्बत से खाली हों, किसी के साथ अच्छा बर्ताव ना करें, तो क्या हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं? कभी नहीं। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं, खुदा की बादशाही की बात जब करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मिसाल दी गई है। 10 कुंवारियों की मिसाल बाइबल मुकद्दस में बड़ी मशहूर है। 5 ने क्या किया और 5 ने उसका कैसा रिजल्ट देखा। इंतजार करने के बावजूद वो सो गई, लेकिन जो जागती रही वो उस बादशाही में दाखिल हो गई। आज हमें भी इस बेदारी, इस नींद से बेदार होना है, क्योंकि हमने जिंदगी गुजारी, अपने जिंदगी के कितने साल हमने गुजार लिए, गुनाह में गुजार रहे हैं, या अच्छाई में गुजार रहे हैं, ये आज हमें सोचना है। लेकिन जब हम इस खौफ की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए, जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो उन्होंने बहुत सी नाफरमानियाँ की, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानियाँ की तो खुदावंद ने अपने उस वबा के जरिए उन पर जाहिर किया कि अभी भी खुदावंद के पास आ जाए। लेकिन जब हम खौफ की बात करते हैं तो जब हम इसकी तरफ देखते हैं, खुदा के कलाम में है कि तुम जब खौफ करोगे तो अपनी जिंदगी को बचाओगे, अगर खौफ नहीं करोगे तो फिर तुम मरोगे, बल्कि मौत जो है वो आपको अपने अंदर समो लेगी। लेकिन यह हम देखते हैं 3 पॉइंट हैं जिन पर हम देखेंगे खौफ के मुताबिक। यहाँ क्या बात है? मौत का खौफ है। ये कोरोना वायरस की वजह से आज लोग ये नहीं कि कोरोना वायरस से परेशान है कि ये वायरस क्या है, लेकिन उसके रिजल्ट को देखते हैं कि जब वो हम पर हैवी हो जाएगा, हमारे लिए बीमारी आ जाएगी, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद हमें इस मौत में आना पड़ेगा। मौत का खौफ है। और जब हम देखते हैं उसके बाद जब मौत का खौफ है, अगली बात है फिर हमें उस अदालत का खौफ है जो हमारे आने वाले वक्त में हो। हमारी अदालत होगी तो अदालत का डर उस इंसान को होता है जिसने कोई गुनाह किया। अगर कोई इंसान गुनाह नहीं करेगा, उसके लिए आज क़यामत आ जाए
आज हिसाब का दिन आ जाए, आज अदालत लग जाए। लेकिन जो चोर होगा तो गली में खड़ा होगा ना, तो दूर से गाड़ी किसी और को पकड़ने की आ रही होगी तो उसको खौफ होगा कि मुझे पकड़ने आ रही है। यही चीज आज के दौर में है कि हमें खौफ है कि हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं, अगर हमारी मौत भी होती है, हम सो जाते हैं उसमें, लेकिन एक वक्त है कि हमारे लिए एक उम्मीद है, हमारे लिए एक ऐसी बात है जिसके लिए अगर हम मरते भी हैं दुनियावी तौर पर तो हम मरते हैं, लेकिन यीशु के साथ अगर हमारा रिश्ता कायम है तो उसमें हम सोते हैं। लेकिन जब एक चीज सो जाती है तो एक दिन उसको बेदार भी होना है। और तीसरी बात, खुदा से मिलने का खौफ। खुदा से मिलने के खौफ की बात क्या है? हर बंदा कहता है मुझे खुदा मिले, हर बंदा कहता है मुझे खुदा बरकत दे, लेकिन खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि हम अंदर से गुनाहगार हैं, हमारा दिल पाक नहीं। क्योंकि जब हम एक पाक चीज को मिलेंगे तो वहाँ एक शर्त है कि हमें भी पाक होना पड़ेगा। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। लेकिन यहाँ हम खुदा से तो डरते नहीं, लेकिन कोरोना वायरस से डर रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से खुदा के खौफ में आ रहे हैं। इसलिए आज हमें सोचना है कि हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर खुदावंद भी हमें बचाएगा। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। यानी कि अगर हमारे अंदर ईमान है तो हमारे अंदर मोहब्बत होगी, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो मोहब्बत को किसी का कोई खौफ नहीं होगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है। ये खौफ के हवाले से है। लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो खौफ आएगा, लेकिन जब खौफ आएगा तो फिर हमें उस अजाब में से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने एक कहानी देखी, लाजर और दौलतमंद आदमी। हमारे पास जितनी मर्जी वसाइल हो, जितनी मर्जी सहूलतें हों, लेकिन जितनी देर तक हम खुदावंद का डर और खुदावंद का खौफ नहीं रखेंगे, हम कभी भी इस अजाबों से, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से नजात नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि इसीलिए जब हम ज़बूर में इसको देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात करता है। ज़बूर 41 है। ये अक्सर जो है हमारे आजकल लोग चिट्ठे लगाकर गेटों के ऊपर लिखा हुआ आता है। और जब हम ज़बूर में देखते हैं, अगर हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं, जब हम इम्तहान देने जाते हैं तो टीचर हमारे साथ बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं। जब एक स्टूडेंट की तैयारी नहीं, तो जब उससे प्रैक्टिकल लिया जाता है तो वो वहाँ कुछ बयान ही नहीं करता। तो इसलिए हमें देखना है कि जब हम 41 ज़बूर 41 की 10वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है। 41:10। अच्छा, फतवा खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर ताकि मैं उनको बदला दूं। हाँ। अगर हम खुदावंद में हैं, सॉरी, ताकि ये मेरा, इससे मैं जान जाकर तू मुझसे खुश है कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। यहाँ देखते हैं जब हम वबा की बात करते हैं
तो अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो फिर हमें फतह मिलेगी। अगर हम खुदावंद के साथ नहीं तो कभी भी खुदावंद हमें फतह से हमकिनार नहीं करता। इसलिए कि हम जब खुदावंद के कामों को देखते हैं, जब हम उसकी बातों को देखते हैं, तो अगर हम उससे रूगर्दानी करते हैं, अगर उस पर अमल नहीं करते, तो फिर कभी भी हम उस इब्लीस पर फतह नहीं पा सकते। इसलिए कि हमारा खुदावंद हमें हमारे लिए और बहुत सी बातें हैं जो कलाम के जरिए से हम तक जाहिर करता है, और हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा खुदावंद फिर हमारी दुआओं को सुन लेता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि कभी कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी। गेट पर लिखने से नहीं आएगी, अगर गेट पर लिख लिया तो वो वहां से देखकर चली जाएगी। ठीक है, ईमान है हमारा, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। जब बर्रे का खून लगाया गया था, मैं कई दफा कहता हूँ कि आज के दौर में लोग कहते हैं कि बाप बेटा रूह कुदस के नाम से आमीन। मैंने कहा उस वक्त भी जब देखो तस्लीस उस वक्त भी मौजूद थी, यीशु मसीह के आने से पहले भी। उन्होंने चौखट पर ऊपर नीचे और साइडों पे निशान लगाया ब्लड का, उस खून का, उस बर्रे का, कि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो मौत वहां से टल जाएगी, वो खुदा के लोग बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को खुदावंद के आगे समझा, उन्होंने खुदावंद के आगे उस तमाम कुर्बानियों को किया जिनके वसीले से वो खुदावंद के हुजूर में आते। लेकिन अगर हम गेट पर ही लिख दें कि कोई भी आफत तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, तो अंदर से हम कुछ और हों, तो फिर खुदा के कलाम में वही बात आएगी कि सफेदी की हुई कब्रें हैं, ऊपर से तो साफ है लेकिन अंदर से इनके दिल मुझसे दूर है। तो आज हमें सोचना है कि इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत परेशानी में, जब भी कोई बात टीवी पर मीडिया पर सुनते हैं तो हम डर के मारे परेशान हो जाते हैं, और उसी वक्त हम दुआ भी करना शुरू कर देते हैं कि किसी साढ़े वाला ये काम आए। लेकिन अगर हमने कोई शील्ड अगर लेनी है, हमने अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज करनी है, तो हमें इस कलाम को लेना होगा, इस जिंदा कलाम को लेना होगा जिसमें हमेशा की जिंदगी, जिसमें हमेशा का आराम। लेकिन अगर हम इसको नहीं लेते, अगर हम इसकी हिफाजत में नहीं आते, तो फिर हमें एक हल्का सा सर में दर्द होगा तो हमारी डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो उस डर का, उस मौत का हमारे अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद अपने लोगों को बचाता है। जब हम दाऊद और सौल की बात करते हैं तो वो दाऊद खुदा परस्त आदमी था, खुदा का बंदा था। जब उसने सौल के साथ काम करना शुरू किया तो सौल अंदर ही अंदर से कुड़ना शुरू हो गया कि लोग, मेरी जब बात होती है तो हजारों की बात करते हैं, दाऊद की जब बात आती है तो लाखों की बात करते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसको भी फातिहा कहा गया, वहां उसको भी कहा गया, लेकिन फिगर का फर्क था। उसके फिगर लाखों में है, उसके हजारों में है। उसे कहा मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, आज का बच्चा जो आने वाला है उसके लिए जो लोग, जब बेटियां खुशी मना रही हैं तो साथ में कहती है उसने तो हजारों मारे, उसने लाखों पर फतह हासिल। ये छोटी छोटी चीजें आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। आज भी हम एक दूसरे से हसद करते हैं, आज भी हम एक दूसरे के लिए बुरी सोच रखते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम इसको पढ़ रहे हैं हम शर्मिंदा होते हैं। ये हमारे अंदर की बातें हमें बताता है कि हम क्या थे और क्या हैं और अब हम क्या कर रहे हैं। आज का कोरोना वायरस भी हमें सिखा रहा है कि हम किस तरफ थे और खुदा ने हमें किस लिए इस दुनिया में भेजा, लेकिन आज हम क्या करते हैं, क्या हमारा हाल अच्छा है। अगर हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो ये ये बीमारी, ये परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम खुदावंद में कायम
देखा मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। अगर वो हमारे साथ है तो इस कोरोना वायरस से खतरनाक बीमारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जब छोटा सा था, मुझे होश है कि हमारे गांव में कन्वेंशन पड़ी होती थी, तो एक आदमी वहाँ आया, खुदा का बंदा, वो गद्दी नशीन था उस वक्त का, वो बहुत बड़ा पीर था, और खुदावंद ने उसको वहाँ से पकड़ा, उसने बपतिस्मा लिया, तौबा की, नसीहत में आ गया। और जब घर वालों को पता चला कि ये तो इतना बड़ा गद्दी नशीन है, तो ये किस तरफ को चल पड़ा है, उन्होंने क्या किया, उसको जहर देने की कोशिश की। जब उसको जहर दिया, पानी में डालकर या किसी चीज में, वो खा गया या पी गया, लेकिन अब इंतजार हो रहा है उसके मरने का कि कब मरे और इसकी डोली उठाएं या जो भी इसको करें, जैसे भी इसको उठाना है, किस तरह कटोले में डालना है, ताबूत में डालना है, किस तरह करना है। अब वो सब इस इंतजाम के लिए परेशान कि अब इसकी मौत होगी तो इसको पता चलेगा कि किस तरह मैं गलत रास्ते पर, वो गलत रास्ता इख्तियार उन्होंने कहा, उनके ज़हन के मुताबिक उसने इख्तियार किया। लेकिन जब एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, वो बंदा उसी तरह फिर अपनी पोजीशन में चलना फिरना शुरू हो गया, और फिर उसने खुदा के कलाम के साथ ये भी गवाही दी कि मुझे मौत का कोई डर नहीं, इसलिए डर नहीं है क्योंकि मैं यीशु का सिपाही हूं। हालेलुया। अगर हम यीशु के साथ, क्योंकि वो हमें नागहानी मौत से भी बचा सकता है। दानियल को जब हम देखते हैं, शेर किसी को नहीं बख्शता, अगर किसी ने पाला है कभी उस पर भी हमला कर देता है। चिड़ियाघर में, म्यूजियम में बड़े बड़े ये चिड़ियाघर देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ भी देखा कि जानवर ने औरतों पर, मर्दों पर, श्रीलंका में हाथी ने बहुत से लोगों को मार दिया था, हालांकि उनका पाला हुआ था। इंसान जो है उसको अशरफुल मखलूकात का इसलिए दर्जा मिलेगा, हर चीज़ पर है नहीं। लेकिन जब वो खुदा को छोड़ देता है, अपने आप पर तवक्कल करता है कि मैं ही सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है मैं हूँ सो हूँ, वो ही अपने आप को कह सकता कि मैं हूँ। लेकिन साढ़े जी बड़ी मैं है, असलिया ने ऐसी बड़े, हम भी अपने काम से खुदावंद को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो जिंदा है, खुदा के कलाम को इसलिए कहा है कि उसका कलाम आज और कल बल्कि अब तक यकसर है। अगर हम इस पर चलते तो हमें किसी भी वबा की, किसी भी वायरस की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इंसान होते हुए अपने गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो इस कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारियों का हम मुकाबला कर सकते हैं। दास कलाम के वसीले से हम सब आमीन। खुदा का शुक्र हो कि उसके जिंदा कलाम में से हमने देखा कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए हमें अपने गुनाह का इकरार करके अपने खुदा यीशु मसीह के सामने पेश होना है, ताकि ये सारी वबाएँ, सारी बीमारियां जो हैं वो हमसे दूर हो और हम सच्चे दिल से उसके नाम की सिताइश और परस्तश करने वाले हों। आज के जिंदा कलाम के लिए मैं खुदावंद के बंदा भाई वारिस को दावत दूंगा कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए दुआ करें। सारे माहौल फजा पर आए हम सब मिल के दुआ करें। अगर तुम खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो सकता है, ताकि खुदा उनके नाम को और इज्जत और जलाल मिले। हम सब इज्तिमाई दुआ करें।
हालेलुया। खुदाई रूहुल कुदस तेरा शुक्र करते हैं। आए सब मिलके रूहुल कुदस के साथ मिलके दुआ करें। हालेलुया। ओरी साथा का मनाजी वारा का ओरी सी थुरी का नसी मना का। तेरे आने के लिए, छूने के लिए, सारी बरकत सलामती के लिए खुदाई रूहुल कुदस हम अपने आप को पीछे करते हैं, तुझे अव्वल दर्जा देते हैं। आप हमारे अच्छे उस्ताद हो, रूहानी बाप हो, सारे माहौल पर तेरी बरकत चढ़ाते हैं। और हम सब मिलके रूहुल कुदस के साथ मिलके उसके आसीरतों, मुकर्रब फरिश्तों, सराफीन, कराबीन के साथ, चारों जानदारों के साथ, 24 बुजुर्गों के साथ मिलके, मुकद्दसों की जमात के साथ मिलके आओ हम भी सब उसे कदूस करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तुझे बढ़ाते हैं, मुबारक कहते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं, सर बुलंद करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं क्योंकि तू कदूस है। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से खुदाबाद तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। खूबसूरत कलाम के लिए जो आज खुदा आपने दिया है, अपने बंदा के वसीले से बखेरा है। मसीह यीशु के नाम से सब जिंदगियों के लिए बाइश से बरकत हो, एक एक जिंदगी के लिए बाइश से बरकत हो, क्योंकि तेरा कलाम बेअंजाम नहीं वापस लौटता। जिस तरह बारिश बरसती है, जमीन को सैराब करती है, तो हमारा ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से ये जिंदगियां महफूज रहेंगी। यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं हर तरह की वबा, बीमारी, मरी, कुछ भी सब यीशु मसीह के नाम से उनको डालते हैं। यीशु के नाम से दूर हो जाए जिंदगियों से, इन खानदानों से, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पता चला जाए। खुदाए रूहुल कुदस हमारी मदद रहनुमाई का। बाकी माता हिस्से पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा कंट्रोल चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को मांगते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे वे बंदा के लिए बरकत सलामती की दुआ करते हैं जिसने तेरे कलाम की सदाकतों को बयान किया, तेरे कलाम के बीज को बखेरा है। तो यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं खुदा, इन जरखेज जमीनों पर गिरे, इन जिंदगियों की, दिलों की जमीन जरखेज यीशु मसीह के नाम से हो जाए, ताकि बीज जाया ना हो, रहेगा ना हो, वो उगे, फले, बड़े, और ये जिंदगियां तुझे 100 गुना फल देने वाली बनी है। ऐसा फैसला और अपने बंदा को और अपने मुकाशफे दे, भेद दे, ताकि तेरी बादशाही के लिए और कसरत के साथ काम करे। रूहुल कुदस से ले और इस्तेमाल करे। तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर सारी इबादत के लिए, इस वक्त के लिए कुरान जो हमें दिया है, शुरू से लेकर अब तक इस सारे माहौल फजा पर, सारे वक्त पर हम दोस्ताइश, दुआओं, परस्तश, कलाम, इन सारे हिस्सों पर तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। इसी तरह बाकी मांदा हिस्से को खुदाए रूहुल कुदस तेरे कंट्रोल में देते हैं। बाप इस दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। कुरान की इस तारीख के लिए स्कूल नंबर 118 गाएंगे और इसी दौरान हम अपने हदिया जात कुरान के हज़ूर पेश करेंगे और जो लोग हदिया डालना चाहते हैं वो सामने बुलाएंगे और हदिया डालेंगे।
करे है रहमत साडे रब दी सदाती करे है रहमत साडे रब दी करो रब की शुक्र गुजारी करो रब दी शुक्र गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी नेकी निकली है उस तो सारी सदाती करे है रहमत साडे रब दी सदाती करे है रहमत साडे रब दी काश इस्राईल बोले काश इस्राईल बोले ओदी उसत विच मुँह खोले ओदी उसत विच मुँह खोले सदाती करे है रहमत साडे रब दी सदाती करे है रहमत साडे रब दी हारून दे घर दे सारे हारून दे घर दे सारे बादशाह कर मारने नारे बादशाह कर मारने नारे सदाती करे है रहमत साडे रब दी सदाती करे है रहमत साडे रब दी काशा करियो हमेशा काशा करियो हमेशा जो रख दे खौफ यहोवा जो रख दे खौफ यहोवा सदाती करे है रहमत साडे रब दी सदाती करे है रहमत साडे रब दी हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम सरों को झुकाएंगे और खुदावंद का शुक्र करेंगे कि आज की सारी इबादत के लिए उसकी तमजीद के लिए उसके जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस रब्बुल फाज हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी सिताइश और तेरी प्रस्तुश यीशु के नाम से करते हैं कि बाप तूने ये वक्त बख्शा तूने ये मौका दिया कि हम जैसे लोग तेरे घर में आकर तेरी तमजीद करे तेरी सिताइश करे तेरी प्रस्तुश यीशु के नाम से करने वाले हो। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ कि इबादत के शुरू से आखिर तक तूने बाप हमारी मदद की हिफाजत की गीत गाने में हमदो सिताइश करने में हमारे गलों को हमारी जुबान को हमारे लबों को अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरी तारीफ तेरी सिताइश यीशु के नाम से करता हूँ। इसी तरह तेरे बंदा के लिए जिसने आज हमारी जिंदगी में हमारे लिए ये तेरे कलाम को हमारे सामने पेश किया कि हम इन बीमारियों से इन वबाओं से डरे नहीं घबराए नहीं बल्कि अपने दिलों में खुदा का डर पैदा करे अपने ज़हनों में उसका डर रखे जो बीमारियों को दूर करता है जो वबाओं से हमें बचाता है। तो अपने बंदा को छू उसे बरकत दे और अपने जलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर उसकी हर परेशानी हर मुसीबत दुख तकलीफ बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर। और ऐ बाप आज मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि यीशु के नाम में जो लोग तेरे घर अपने अपने घरों में बैठकर इबादत करते हैं या वो इस चीज के लिए उनके दिल में तलब है कि वो तेरे घर
ताकत और कुव्वत दे, ताकि हम सब मिलकर तेरी प्रस्तुति करें, तेरी सिताइश यीशु के नाम से करने वाले हो। ऐ बाप, खास तौर पर तेरे बंदा पास्टर अयूब साहब को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ऐ बाप, जो तेरा बंदा इस मिनिस्ट्री को चला रहा है, तो तू अपने बंदे को छू, उसको बरकत दे, उस पर रहम कर, उसकी सारी परेशानियों को, मुश्किलात को, मुसीबतों को यीशु के नाम से दूर कर। उसके ऊपर हर परेशानी, मुसीबत यीशु के नाम से जाती रहे। वो लोग ऐ बाप आज तो तेरे घर में बैठे तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरे कलाम को सुना है, तेरी तमजीद की है, और अपने दिए में तेरे दिए में से उन्होंने खुदावंद के घर में दिया है। तो जितनी जाने यहाँ बैठी है, हर एक को नाम बनाम बरकत दे, उनको छू कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी रहमत के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में उन्हें बरकत दे, और हर एक की दिली ख्वाहिश को यीशु के नाम से पूरा कर। तो इस पंडाल को अपनी अपनी हिफाजत करने के बारे में ले। यीशु के नाम में हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि हम तेरे हजूर में आकर तुझे सजदा करते हैं, तुझे दुआ करते हैं, तो तू अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है। तो जिस तरह आज तूने सारा दिन मदद की, इबादत की, इबादत के अब एंड तक तूने मदद की, इबादत की, उसी तरह आज वक्त में भी छू और छू कर मदद कर, रहनुमाई कर, अपने जलाल के लिए हम सब तैयार कर। सारा कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप, इन बीमारियों से, इन वबाओं से तेरे लोग कभी ना डरने वाले हो, तेरे लोग तेरे अपने दिलों में तेरा डर, तेरा खौफ पैदा करने वाले हो, और तेरे कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले हो, और तू उनको बरकत बख्शे, तू उन पर रहम करे, तू उन पर तरस यीशु के नाम से करने वाला हो। तू मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, सुन और बख्श दे। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मानद है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जों को माफ करते हैं तू हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद के साथ को दावत देंगे तो हमें कलमा के बाद बात से रुखसत करें। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, रूह कुद्दुस की मबूरी और रूह कुद्दुस की मबूरी और तमाम बरकत आप सबके साथ, बनी इस्राएल के साथ और आप के साथ, और जो हमारे घर में नहीं है, जो आज यहाँ पर नहीं आए, उनके साथ और पूरी दुनिया के साथ आपसे हमेशा। आमीन।